visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So when we talk about the gene transfer technology, as the name suggests, its name clarifies what we are talking about, for which technology we are talking about. The gene transfer technology is basically a technology where we transfer a gene or a DNA fragment from one organism to the another. It is a very simplest definition of the DNA transfer technology, a technology where we transfer the gene or DNA from a one organism to the another. Okay, so basically, the gene transfer technology is a technology which is used to manipulate the living cell for scientific research and for commercial purpose like development of transgenic crops. Okay, it may be a plant crop, it may be a transgenic fish, transgenic livestock. Okay, so in gene transfer technology is basically to transfer your gene of interest into the target cell. Okay, so this gene transfer methods may be of several types. Okay, when we talk about our aim is to transfer our gene of interest into a host cell, and that methods involve several, there are several types of methods. Okay, so what are the different methods which is involved in the gene transfer that we will see today. So before seeing that, we will see what kind of gene transfers occurs in the target cell. What suppose if we are inserting the foreign gene or your gene of interest, okay, in a target cell or in a host cell, there will be two type of transformation. One is the transient transformation or transvection, and another one is the stable transformation. When we are talking about the transient transformation means your foreign DNA or your gene of interest is transferred inside the host cell, but that foreign DNA or that DNA fragment will not integrate into the host chromosome. Means वो जो डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है वो सेल में तो है, लेकिन वो उसके क्रोमोसोम में जो है वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो वो उसी उस सेल के अंदर जब तक वो सेल लाइव है उसमें उसका एक्सप्रेशन होगा। ओके, लेकिन वो जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज दैट ट्रांसफेक्टेड डीएनए इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। जब तक वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, वो जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसमें ट्रांसफर हो रही है, देर इज अ high level of expression of that particular DNA inside the cell, but it is not integrating into the host chromosome. That kind of transfer is known as the transient gene transfer. Okay, when we talk about the stable gene transfer, it is basically kind of permanent gene transfer. Means if you are transferring your gene of interest into the animal, it get inserted into the chromosomal DNA, and now the genetic composition of the recipient or the target cell is permanently changed. It means the now your target cell is permanently transgenic. In transgene transfer, what happened? Your cell is um, transgenic for one generation, okay, because it is not integrated into the host genome. So the next generation is a normal cell type. Okay, it is not containing the transgene. But when the transfer is stable, what happened? Your gene of interest will get integrated into the target cell chromosome, and the genetic composition of the recipient cell is permanently changed, and that transgene or that gene of interest is will transfer to the next generation also. So that type of gene transfer is known as a stable gene transfer or transfection. So in the research or in development of transgenic crop and all, those means it depends what kind of transfer you want. Okay, that depends upon what is the objective of your work. Okay, suppose if you want a transfer, suppose you want a transgenic fish or a transgenic tomato or transgenic uh, potato. In that case, what you need, you actually want that your transgene, suppose a transgene carrying some desired character. In the case of tomato, it carrying
the gene which increase the shelf life of the tomato. So what you want that it should express in every generation, मतलब उससे जो seed आया उससे अगला seed आया उससे अगला seed आया. So in that case you want a stable transfer. Suppose you need a protein or particular enzyme or insulin that you are getting from a bacterial host. You want it कि आप एक बार कल्चर करें एक जनरेशन में आपको बल्क में मिल जाए. You don't want it to be get transferred into the another generation. तो वहाँ पर आप ट्रांजिएंट ट्रांसफर करके भी आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट, व्हाट काइंड ऑफ जीन, व्हाट इज द मीडियम, व्हाट इज द मेथड you are using for the gene transfer. So now the type of methods which is used for gene transfer. In this class I am focusing mainly on the methods which is used in the animals. Okay, so they are categorized basically into three groups. Okay, the number one is biological method, then chemical method, and physical methods. Okay, so when we talking about the biological methods means this is a method of gene transfer where we used biological agents, okay, like virus or bacteria for transfer of gene. Okay, so there are basically two categories of the biological method which is used for the gene transfer is viral transduction, where the gene transfer is virus mediated, and another one is the bacteriophage, means the gene delivery is through the bacterial strain. Okay, then the chemical methods, they are actually in these methods we generally for we make the complex of a particular chemical with the DNA of our interest. Okay, so what happened when we mix the chemical and our DNA of interest together, it form a certain complex, and that complex formation actually mediate or facilitate the transfer of DNA into the target cell or host cell. Okay, so there are several categories like calcium phosphate mediated gene transfer, DEA dextran mediated gene transfer, liposome mediated gene transfer. There are some other polymers like poly-L lysine, polyphosphoester, chitosan. These are the some polymers, they also mediate the gene transfer. So these are the chemical methods. Then the physical methods where we perform the micro injection. Okay, basically with the help of micro syringes and needle we insert the DNA inside the cell. Okay, we basically directly inject the DNA inside the cell using the micro injectors. Okay, then there are some techniques like particle bombardment or ballistic gun. Gene, if you have heard the term gene gun, gene gun is basically a precursor equipment that actually what used to do, it used to bombard the very tiny particles, nanoparticles, metal particles, it may be of gold particles. Okay, so it basically a gun which carries a nano gold particle and it basically fire on this. So with the help of ballistic bombardment or particle bombardment we fired it on the cell. So this bead entered inside the cell. So when we need to transfer a particular DNA, we used to coat that particular DNA on metal beads, on gold beads, and that gold beads which is coated with the gene of interest are bombarded on the target cell. Then there is a some of other methods like electroporation. In electroporation, the electric impulse is a short electric impulse given to the cell. So what happened, it caused the formation of wide pores on plasma membrane. Okay, because charge disturb होता है इलेक्ट्रिक पल्स से. जब मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज डिस्टर्ब होता है, वो चार्ज डिस्टर्बेंस से क्या होता है, बेसिकली बड़े बड़े से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर्स बन जाते हैं, एंड फ्रॉम थ्रू दोज पोर्स your gene of interest or your DNA get transferred inside the target cell. Then there is another method like sonoporation. सोनोपोरेशन में बेसिकली जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो सेल जो टारगेट सेल होती है उस सस्पेंशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स दी जाती हैं. उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सोनिक मूवमेंट्स होता है दैट ऑल्सो कॉज द पोर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड डीएनए जो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डीएनए है दैट गेट ट्रांसफर्ड इनसाइड द host cell. So these are basically
three major categories of gene transfer: the biological, chemical, and physical. So we will take these methods in detail one by one. So first we will talk about the biological methods, the bacteriophagation. As the name suggests, bacto means bacteria, faction means infection. So bacteriophagation is basically the term which is derived by joining two words, bacteria and infection. Okay, so in this method of gene transfer, what we used to do, we basically take the bacterial strain which are invasive and which can infect the host cell. मतलब कोई भी बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉजिंग है, जो कि पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करता है, इन्वेट करता है और वो सेल टू सेल बहुत एफिशिएंटली स्प्रेड करता है, इस तरह के बैक्टीरियल स्ट्रेन को हम यूज करते हैं बैक्टोफेक्शन के लिए। जो जीन थेरेपीज होती हैं, जो थेरापेटिक जीन ट्रांसफर होते हैं, उसमें बैक्टीरियोफेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल बैक्टोफेक्शन के लिए या जीन ट्रांसफर के लिए, उसके अंदर वी यूज टू इंसर्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, वी आर बेसिकली इंसर्टिंग आवर वेक्टर, ओके, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर इनसाइड द बैक्टीरियल स्ट्रेन। उस बैक्टीरियल स्ट्रेन में हमने डाल दिया जो कि हाईली इन्फेक्शियस है और जो सेल टू सेल बहुत एफिशिएंटली जो है वो स्प्रेड करता है। वी प्रिपेयर्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक वेक्टर, दैट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक वेक्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल, और उस जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है उसको फिर हम टारगेट सेल के ऊपर डाल देते हैं। इन टारगेट सेल को उससे इन्फेक्ट, टारगेट सेल टिश्यू या ऑर्गन या होल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम उसको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया जो है बिकॉज दे हैव द इन्वेडिंग मैकेनिज्म, सो दे इन्वेड इनसाइड द होस्ट सेल और टारगेट सेल, और वहाँ पर, और जब वो अंदर जाते हैं, जब वो सेल के अंदर जाते हैं, तो जो सेल की होस्ट मशीनरी होती है वो बैक्टीरिया के को पे अटैक, वो भी उसको अटैक करके उसको किल करना चाहती है। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब बैक्टीरियल लाइसिस हो जाती है और जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो बाहर आ जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो बाहर सेल में आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपका जो जीन ट्रांसफर है वो आपके टारगेट सेल में हो जाता है। हेयर वी कैन सी इन द डिटेल, हेयर इन द ए यू कैन सी दिस इज अ टारगेट सेल। ये टारगेट सेल का साइटोप्लाज्म है और ये टारगेट सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये आपका बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर आपका प्लाज्मिड भी है, और ये प्लाज्मिड आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जिसमें कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया से इस टारगेट सेल को इन्फेक्ट करवाते हैं। तो इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल के, ये बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ये जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, जो साइटोप्लाज्म है टारगेट सेल का, वो क्या करेगा, वो लाइसिस करना शुरू कर देगा बैक्टीरियल सेल की। यहाँ देखिए बैक्टीरियल सेल का जो है वो ब्रेक डाउन शुरू हो गया, और जो इसके अंदर प्लाज्मिड है वो फिर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो रिलीज प्लाज्मिड है ये न्यूक्लियस में जाएगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर, इट गो इनसाइड द न्यूक्लियस, और वहां पर ये जो है यूकैरियोटिक जो होस्ट मशीनरी है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, उसको यूज करके इस ट्रांसजीन का जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड विच इज नोन एज बैक्टोफेक्शन, जहां पर हम इन्फेक्टिशियस बैक्टीरियाज में कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करते हैं और उसमें अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाल के उससे जो है हम टारगेट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और उस इन्फेक्शन से जो है आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो टारगेट सेल में चला जाता है और वहां पर उसका एक्सप्रेशन होता है। ये सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि यूज किए जाते हैं बैक्टोफेक्शन में, ओके। और ये किस किस, बेसिकली मैंने बोला जो बैक्टोफेक्शंस होता है ये मोस्टली जो जीन थेरेपी होती है, जो मतलब डिजीज को ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलर ट्रांसजीन्स को जो अंदर डाला जाता है, ये उसमें ज़्यादा यूज होता है। सो इट हैज़ सो बैक्टीरिया, मैंने जैसे कि बताया ये वैक्सीनेशन में भी यूज होता है। बेसिकली जैसे डीएनए वैक्सीनेशन करना है तो वो जो पर्टिकुलर वैक्सीन का डीएनए है दैट इज इनसाइड द बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो है वो आपका ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो डीएनए है, जो वैक्सीन का डीएनए है, वो इनसाइड द सेल चला जाएगा। और ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे ट्यूमर्स का है, और बेसिकली जो आपकी कैंसरस के ट्रीटमेंट में इस तरह
का जीन ट्रांसफर यूज किया जाता है, यानी कि थेरापेटिक जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए बैक्टोफेक्शन यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इस जीन ट्रांसफर मेथड का? सिंपल है, सेलेक्टिव है और एफिशिएंट है। सिंपल यानी बैक्टीरियल कल्चर मेंटेन करना बहुत महंगा और मुश्किल नहीं है। सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो अपने होस्ट के लिए सेलेक्टिव होता है, तो इसलिए ये सिलेक्टिव भी है। और दूसरा एफिशिएंट है क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं दे हैव अ वेरी एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, तो वो अपना ओन इन्फेक्शन मैकेनिज्म जो है वो यूज करके होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम को फूल करके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट भी, सिंथेसिस कॉस्ट भी कम है, और इनको क्या कहते हैं, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म वो भी इजी है। डिसएडवांटेज क्या है? इसके साइड इफेक्ट है, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया इसमें यूज किए जाते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, और ये होस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी कभी बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करता है। इसीलिए जो भी बैक्टीरियल स्ट्रेन बैक्टोफंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उसमें थोड़े जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, ताकि जब वो टारगेट सेल के अंदर जाए तो उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो, ताकि जो क्लिनिकल इन्फेक्शन है उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाए, और जो खाली आपका जो ट्रांसजीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो उस सेल में रहे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बैक्टोफेक्शन। नाउ द सेकेंड बायोलॉजिकल मेथड इज द viral transduction. So in this method basically we transfer our gene of interest into the host cell or a target cell using a virus as a करियर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो कोई भी वायरस जिसको कि हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं उसमें दो फीचर मस्ट होने हैं। सबसे पहला कि इट शुड बी अ वेरी एफिशिएंट वायरस टू डिलीवर इट्स ओन न्यूक्लिक एसिड इनटू द टारगेट सेल और द होस्ट सेल, और जब वो होस्ट सेल के अंदर चला जाए तो इट मस्ट हैव अ कैपेसिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। ओके, सो बेसिकली जो वायरल ट्रांसडक्शन मेथड जो होता है जीन ट्रांसफर का, इसमें होता क्या है कि जो आपका फॉरेन जीन होता है इट सिंपली गेट पैक्ड इनटू द वायरस पार्टिकल। जैसे कि हमने वायरस जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे वायरल वेक्टर्स देखे थे। लैम्डा में आपका रिप्लेसमेंट वेक्टर देखा था, इंसर्शन वेक्टर देखा था, फेज मिट्स देखे थे हमने। तो ये जो वायरल वेक्टर्स होते हैं, इन वायरल वेक्टर्स में आपने अपना आपके पास रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर है। रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर वो है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। वो उसको अगर हम वायरस पार्टिकल बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर वायरस का जीनोम जो है वो रहता है, यानी कि कैप्सिड, और जो उसका न्यूक्लियो कैप्सिड हम बोलते हैं ना, न्यूक्लियस मटेरियल है उसके ऊपर प्रोटीन कोटिंग है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वायरस को क्या, वायरस अपने जीनोम को पैक करता है प्रोटीन्स के अंदर। तो अगर वहां पर उसके डीएनए के साथ साथ आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है या फिर आपका फॉरेन जीन है, तो वो उसको पैक कर लेगा। और जब वायरस के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पैक हो गया, उस पैक्ड वायरस को अगर आप टारगेट सेल पे इन्फेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, ये पैक्ड वायरस पार्टिकल आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी टारगेट सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, और वहां पर इसका जो न्यूक्लियर जीनोम के साथ इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली रिसेप्टर मेडिएटेड प्रोसेस होता है। विल सी हाउ। देखिए जीन ट्रांसफर वायरसेस में कैसे होता है, ये देखिए ये एक न्यूट्रल वायरस है, ये वायरस है जो कि किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल के लिए जो है उसका होस्ट है। तो करते क्या है कि ये देखिए ये उसका जीनोम है, ये आपका आउटर लेयर है, कैप्सिड प्रोटीन है जो उसका बाहर का कोटिंग है, और इसके अंदर ये उसका जीनोमिक डीएनए है। तो जीनोमिक डीएनए में जो ब्लू कलर का सेक्शन है ये वो जीन है जो कि क्लिनिकल इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत सीवियर डिजीज हो सकती है। तो इस रीजन को रिमूव करके हमने इसमें डाल दिया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस डीएनए को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये इस वाले को रिमूव किया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब क्या करेगा, अब फिर से जो है ये जीन जो है वो आपका पैक हो गया नए वायरस बॉडी में,
और फिर जब ये वायरस आपके टारगेट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना जीनोम नहीं, अपने जीनोम के साथ साथ जो उसमें ट्रांसजीन है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी आपके टारगेट सेल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बेसिकली ये आप मान लीजिए कि आपका वेक्टर है या आपका बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या कैंडिडेट जीन है, और ये समझ लीजिए ये है। तो ये जा करके आपके न्यूक्लियस के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। होस्ट सेल के न्यूक्लियस पे एक रिसेप्टर होता है जो इसके साथ बाइंड करेगा, और फिर आपका डीएनए जो है वो अंदर जाएगा। दो तरह का वेक्टर हो सकता है, एपिसोमल हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है। ये जो डीएनए गया ये होस्ट सेल में इंटीग्रेट भी कर सकता है, यानी कि स्टेबल ट्रांसफर कर सकता है, या फिर होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेगा, और उसका जो आपका जो ट्रांसजीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस होगा, ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में आपको जो आपका प्रोटीन है, आप जो इंटरेस्ट है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ओके, so there are several modified viruses which are used for the DNA transfer. Direct as such आप जो wild type virus या wild type जो bacterial strain है आप उसको gene transfer के लिए नहीं use कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड टाइप स्टेट होता है वो पैथोजेनिक होता है, वो क्लिनिकल सिम्टम्स कॉज करता है। तो अगर उसके थ्रू आप किसी भी टारगेट सेल में इन्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो सेल डेथ हो सकती है, इन्फेक्शन एग्रीवेट कर सकता है। So whenever we use the biological system, biological cells for gene transfer, we need to modify them. उसमें आपको थोड़ी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, कुछ डिजायरेबल चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट चेंजेस एक्चुअली allow those microorganism to perform the desired function. तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं वायरसेस की जिसके कि मॉडिफाइड वर्जन्स यूज होते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। जैसे आपके एडेनो वायरसेस हैं, एडेनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं, herpes viruses हैं, रेट्रो वायरसेस हैं, एंड लेंटी वायरसेस हैं। ओके, so we'll see some of the example how the adenovirus or the adeno associated virus or retrovirus actually cause the gene transfer in target cell. This is the example of the adenovirus gene transfer. Okay, here you can see that this is the genome of the adenovirus जिसमें से कुछ जीन्स को डिलीट कर दिया है, जैसे कि E1, E3। ये अर्ली जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, होस्ट इम्यून सप्रेशन के लिए, या इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल एपोप्टोसिस के लिए। तो इसको रिमूव कर देने से क्या होगा कि अब ये जो जीनोम है एडनोवायरस का ये पैथोजेनिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जीन अगर नहीं है इसमें तो इसकी वायरल पैकेजिंग भी नहीं होगी। तो क्या करते हैं, इस जीन को रिमूव करके इसको सेल लाइंस जो होती हैं, जो टारगेट जो कॉम्प्लीमेंट सेल लाइंस होती हैं उसमें इनको ट्रांसफर कर देते हैं। और वो जो सेल लाइन होती है उसके पास अपना इवन, उसके अंदर इवन जीन होता है, यानी सेल लाइन क्या जो अपना जो जीन्स हैं जब उसके जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो वेक्टर, इस ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जिसमें कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आपका वायरस पैक्ड हो जाता है, और ये वायरस जो है फिर ये इन्फेक्शन करता है आपके टारगेट सेल को, और वहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है आपके जो एक्सप्रेशन कह सकता है, जो आपका डिजायर्ड जो जीन आपने उसमें डाला है। What is the advantage of using adenovirus? The high transduction efficiency. वायरस की जो ट्रांसफर एफिशिएंसी होती है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा होती है। वायरस जो है बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन करते हैं, तेज़ी से जो है वो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, और इंसर्ट साइज भी आप अप टू 8 किलो बेसिस तक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत हाई वायरस टाइटर होता क्या है कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पर आपको हाई अमाउंट में डीएनए चाहिए होता है टू मैनिपुलेट। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन में जो होता है बहुत ज़्यादा वायरल टाइटर या वायरल लोड जनरेट करते हैं, और एक्सप्रेशन भी बहुत हाई होता है इन वाइड वैरायटी ऑफ सेल टाइप, और क्या कहते हैं बहुत म्यूटाजेनिक इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये रैंडमली इंटीग्रेट करते हैं होस्ट जीनोम में, और कुछ केसेस में ये इंटीग्रेट करते भी नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये स्टेबल ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि इनका इंटीग्रेशन नहीं होता होस्ट क्रोमोसोम में, इसलिए जो इनका एक्सप्रेशन है वो ट्रांजिएंट है, वो स्टेबल नहीं, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा।
और अगर कुछ चेंजेस, बिकॉज ये वायरसेस पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमन के, तो अगर कुछ होस्ट सेल के अंदर वायरस होस्ट में कोई इंटरेक्शंस होता है, कोई भी पॉसिबल इंटरेक्शंस होता है, दैट मे कॉज द पैथोजेनिसिटी टू द होस्ट. ओके, नाउ ड्यूरिंग द एडेनो एसोसिएटेड वायरस, इसमें क्या होता है, दो वायरसेस को यूज किया जाता है. एक वायरस एक वेक्टर होता है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रखता है, एक वेक्टर होता है जो कि उन जीन्स को रखता है जो कि वायरस के रेप्लिकेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है और उसकी कैप्सिड प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है. तो इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ जो है सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले. तो क्या होता है कि ये जो है आपका कैप्सिड प्रोटीन बनाते हैं और दूसरा वाला आपका कैंडिडेट जीन की मल्टीपल कॉपी बनाता है. फिर ये जो है पूरा का पूरा पैकिंग करता है और आपका जो रिकॉम्बिनेंट जीन है वो वायरस प्रैक्टिकल में पैक्ड हो जाता है और फिर ये पैक्ड वायरस पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं टारगेट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए. ओके, देन एडवांटेज स्टेबल है और दूसरा जो होस्ट रेंज है वो बहुत वाइड है, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट नहीं करता है. ठीक है, उसके बाद जो साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप इसमें, नॉन पैथोजेनिक वायरस हैं क्योंकि आप मोस्ट ऑफ दी जो पैथोजेनिक रीजन है वो उसमें से रिमूव कर दिया जाता है. देन डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्कैटमेरिक रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट्स फॉर्म करता है, यानी कि बहुत सेवरल कॉपीज एक के साथ जुड़ती जाती हैं और वो जो है वो प्रॉब्लम करती हैं हाई वायरस टाइटर के लिए. ठीक है, दूसरा ये जो वायरसेस होते हैं एडिनो वायरसेस, दे आर ऑफन कंटामिनेटेड विद द हर्पीज एंड एडिनो वायरसेस. तो वो एक स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन में कि आपको जो वायरल कॉलोनीज मिल रही हैं वो एक्चुअली एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस की हैं या एडिनो वायरसेस की हैं या हर्पीज वायरसेस की हैं. और एक डिसएडवांटेज, जो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इस वायरस के लिए, इंसर्ट साइज सिर्फ 4 KB तक जो है वो लिमिटेड होता है. नाउ यूजिंग द रेट्रोवायरस, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज रेट्रोवायरस? I'm audible? I'm audible? Yes. Okay. So just tell me what is retrovirus? Okay. ऐसा ये नाम just retro means क्या होता है? Have you ever attend the parties जिसका theme retro होता है? हाँ, या आप म्यूजिक सुनते हैं, आपके फोन में अगर विंक होगा या दूसरी कोई ऐप होगी तो उसमें कुछ होता है रेट्रो हिट्स करके एक कैटेगरी होती है सॉन्ग्स की, होती है या नहीं होती है? या फिर जैसे पुरानी पोल्का डॉट्स वाली आप ड्रेस पहने या बहुत हाई वेस्ट पैंट पहने बॉयज, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेट्रो फैशन. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दैट यू मस्ट बी अवेयर. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो रेट्रो मीन्स होता है बैकवर्ड, मतलब आप आगे जाके फिर पीछे की तरफ गए. ठीक है, तो जो रेट्रो वायरसेस होते हैं दे आर बेसिकली द RNA वायरस. बेसिकली जब वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है. तो उनकी अब वो RNA जो है, फर्स्ट दे नीड टू कन्वर्ट दैट RNA इनटू द DNA, देन ओनली इट विल बी गेट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल. क्योंकि होस्ट सेल का जो जीनोमिक मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है और RNA सिंगल स्टैंडर्ड है और DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड है. तो होता क्या है कि जो आपके रेट्रोवायरसेस होते हैं ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं. फर्स्ट ये विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA में, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेट्रोवायरस. ओके, RNA से DNA बनता है और फिर इन्हीं का एक दूसरा एंजाइम होता है इंटीग्रेज, जिसकी हेल्प से ये जो आपका रेट्रोवायरस है अपना जीनोमिक DNA को होस्ट के सेल के साथ, होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करता है. तो बेसिकली जब रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, देखिए ये आपका रेट्रोवायरस का वेक्टर है जिसके अंदर की आप सॉरी ये आपका रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो एक सेल में आपका उस वेक्टर को भी डालते हैं, साथ ही साथ जो है उसमें आपका हेल्पर, ये आपका हेल्पर सेल होती है जहां पर कि एक दूसरा वेक्टर होता है दैट इज हेल्पर वेक्टर, जो उन प्रोटीन्स को कोड करता है जो कि वायरस की पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड है.
आपका वेक्टर है जिसमें कि उस रिकॉम्बिनेंट जीन की कॉपी है, और हेल्पर वायरस का भी जीन है जो कि वायरल प्रोटीन, जो कैप्सिड प्रोटीन है या जो पैकेजिंग प्रोटीन है उनको कोड करता है। तो ये दो, एक आपका अपना होस्ट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, दूसरा हेल्पर सेल का हेल्पर वेक्टर, ये दोनों मिलके पैक करते हैं इसको क्या कहते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन के लिए। और फिर ये जा करके क्या होता है कि आपके टारगेट सेल में ये इन्फेक्ट करता है। ओके, so this is how the gene get transferred using the retrovirus. एडवांटेज क्या है, वेल स्टडीड सिस्टम है। रेट्रोवायरसेस आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनकी जीनोमिक स्टडी सबसे ज़्यादा डिटेल में हुई है, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स और स्टडीज पब्लिश्ड हैं, और इंसर्ट साइज भी इसमें बड़ा हो सकता है अप टू 8 KB, ठीक है। और ये इंटीग्रेट करता है होस्ट जीनोम में जाके, इसलिए जो आपको ट्रांसफर मिलता है, जो एक्सप्रेशन मिलता है, वो स्टेबल ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ डिसएडवांटेज क्या है, आपको हमेशा डिवाइडिंग सेल्स ही चाहिए, मतलब आप उन्हीं टारगेट सेल्स में आप जीन ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू रेट्रोवायरस जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, खाली लाइव सेल्स हैं लेकिन डिवाइडिंग नहीं है, उसमें आप रेट्रोवायरस के थ्रू इन्फेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, इनका टाइटर जो वायरस लोड है वो भी कम होता है, और कई बार जो होता है, जो इंटीग्रेशन होता है होस्ट सेल के अंदर, वो रैंडम इंटीग्रेशन होता है, और जो इन विवो डिलीवरी है आपके रेट्रोवायरस की टारगेट सेल में, वो भी पुअर होती है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस, ओके, लाइक देयर आर सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ वायरसेस। उनका जीनोम कैसा है, इंसर्ट साइज क्या हो सकता है, दिस ऑल गिवन हेयर इन दिस स्लाइड। Now the chemical transfer. Okay, about this slide you can see in the detail. I will share the material also. Now the chemical method. Okay, so when I'm talking about the chemical method of gene transfer, basically इसमें क्या होता है, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं उनको यूज़ करते हैं हम डीएनए ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करने के लिए। जो केमिकल मेथड है, इस पर हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। केमिकल के साथ जो होता है कि हम उसको ट्रीट करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का या जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको, और उससे क्या होता है कि और जब हम उस केमिकल कंपाउंड को, यानी कि एक केमिकल प्लस हमारा जीन, वो दोनों को साथ मिलाने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जब उस कॉम्प्लेक्स को हम टारगेट सेल या रेसिपिएंट सेल के पास ले जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, या वहाँ पे जो सेल के ऊपर जो पोर्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, बेसिकली डीएनए के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पैसेज बन जाता है, और आपका डीएनए जो है या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल जो कि आप यूज़ करेंगे डीएनए ट्रांसफर के लिए, इट हैव सम peculiar characteristic like it protects the DNA against the nuclease degradation, क्योंकि सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं। तो आप जो भी एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो आपके जो टारगेट, ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जिस डीएनए फ्रेगमेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करे डिग्रेडेशन से। डिग्रेडेशन किससे, एक्सोन्यूक्लियसेस या एंडोन्यूक्लियसेस से। दूसरा, it transport your DNA to the target cell, और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट क्यों करेगा, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन ऐसा होना है कि वो सेल मेम्ब्रेन का जो बैरियर है उसको क्रॉस करवाए, यानी डीएनए जो है, जिस केमिकल की वजह से डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके अंदर जाए। और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो प्रमोट्स द इम्पोर्ट ऑफ डीएनए इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि सिर्फ साइटोप्लाज्म तक जाने से नहीं होगा, इट नीड्स टू बी गो टू द न्यूक्लियस, वहीं पर जा करके होस्ट सेल मशीनरी को यूज़ करके जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक्सप्रेशन होगा। ओके, सो देर आर सेवरल मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर केमिकल ट्रांसफेक्शन। उसमें से मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पे हैं दैट वी विल टेक इन डिटेल, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, then one second. Okay, the calcium phosphate mediated gene transfer, DEA dextran mediated gene transfer, liposome mediated gene transfer, and there are some other polymers also which helps in the transfer of gene of interest. Okay,
So first we will talk about the calcium phosphate mediated gene transfer. In this method, what we used to do, in this slide, it will be very easy to for you people. So ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और ये आपका डीएनए है जो कि आपका फॉस्फेट बफर में डिजोल्व है, यानी आपकी दोनों ही चीजें आपकी सोल्यूशन में है, डीएनए भी सोल्यूशन में है और कैल्शियम क्लोराइड भी सोल्यूशन में। अगर आप डीएनए सोल्यूशन को किसी सेल के ऊपर पोर करते हैं, सो वो सेल कभी भी डीएनए को सॉल्यूशन फॉर्म में अंदर अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। या लेकिन क्या होता है कि जब हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डीएनए को जब है मिक्स करते हैं तो कैल्शियम और डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट का एक को प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब जो डीएनए के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका जो कैल्शियम क्लोराइड का जो कैल्शियम आयन है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि अब आपका डीएनए जो है वो सोल्यूशन से बाहर है, अब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, अब वो पार्टिकल की फॉर्म में, अब वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं है, अब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और इसको फिर जब हम सेल के साथ डालते हैं, जब सेल के ऊपर डालते हैं तो सेल क्या करती है, इसको फेगोसाइटोसिस करके अंदर ले लेती है, अपने अंदर ले लेती है और वहां से देन इट गोज टू द न्यूक्लियस और वो फिर सेल जीनोम में जो आपका न्यूक्लियस है वहां जाके इट कैन इंटीग्रेट, इट कैन एक्सप्रेस। ओके, so this is how we can use the calcium, basically treat the cell with the calcium chloride solution. We also form the precipitate of DNA and calcium phosphate precipitate, और वो जो है वो फाइगोसाइटोसिस इंड्यूस करता है और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो फॉरेन डीएनए है वो टारगेट सेल के अंदर चला जाता है। एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। आपको कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, टाइम भी कम लगता है और स्टेबल ट्रांसफेक्शन होता है सेल लाइन का, एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेबल ट्रांसफेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस टेक्निक के, लाइक जो कुछ सेल्स के लिए ये टॉक्सिक है, अगर पीएच या बफर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज है या टेम्परेचर में थोड़ा प्लस माइनस होता है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी है वो बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और दूसरा जो है साइज, जो और जो कॉम्पोजिशन और जो प्रेसिपिटेट का साइज होता है वो भी जो है आपका लिमिटेड होता है, तो कुछ डिसएडवांटेज हैं। बट सबसे बड़ी एडवांटेज इस टेक्निक की ये है कि बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेक्निक है। दूसरा मेथड है डाई इथाइल अमीनो इथाइल डेक्सट्रेन मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। बेसिकली क्या होता है कि ये एक पॉलीकेटाइनिक कार्बोहाइड्रेट है। ये जो पॉलीकेटाइनिक कार्बोहाइड्रेट में अगर आप अपना डीएनए मिक्स करते हैं, कैटाइनिक है डीएनए आपका, नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, और ये जो आपका ये पॉलीकेटाइनिक कार्बोहाइड्रेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या करता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होके ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब आपने जो कॉम्प्लेक्स बनाया, आपने नेगेटिवली चार्ज डीएनए लिया, पॉजिटिवली चार्ज डीएई डेक्सट्रेन लिया, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में दोनों को 1:1 रेशियो में रखते हैं तो आप ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल मान लीजिए। लेकिन अगर आप डीएई डेक्सट्रेन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं तो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स बना डीएनए का और डीएई डेक्सट्रेन का, अब वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि आपने जो पॉलीकेटाइनिक कार्बोहाइड्रेट है, जो पॉजिटिवली चार्ज डीएई डेक्सट्रेन जो है वो आपने ज्यादा कर दिया, तो ओवरऑल उस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, कोई बताएगा, एनीवन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण। हाँ, क्यों, क्योंकि the plasma membrane is made up of phospholipids and phospholipids are basically a lipids that carry the phosphate group। तो phosphate group की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपका डीएनए डी डेक्सट्रेन कॉम्प्लेक्स जो है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर वो अट्रैक्ट करता है, वो जाता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जाता है, उससे टच करता है,
एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है और जो आपकी टारगेट सेल है वो उसको अंदर कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। ओके, सो इस तरह से अगर आप डीएनए को डीए डेक्सट्रेन के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं, दैट कैन आल्सो हेल्प इन द जीन ट्रांसफर। एडवांटेज इसका भी है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, वेरी सेंसिटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर डीए डेक्सट्रेन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये टॉक्सिक हो सकता है सेल के लिए, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको स्टेबल ट्रांसफेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। नाउ द लाइपोफेक्शन। लाइपोफेक्शन इज बेसिकली हम क्या करते हैं, लिपिड की व्हीकल बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाते हैं और उन बॉल्स के माइसल्स बनाते हैं और उसके अंदर हम लोड कर देते हैं अपना डीएनए। ओके, आपको पता ना, अगर आप वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर तोड़ दो, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड की बनी, तो छोटे छोटे से माइसल राउंड शेप बॉल्स बना लेगी ना। तो बेसिकली छोटे साइज की यूनिलैमुलर या मल्टीलैमुलर वेसिकल्स बनाते हैं, हम छोटी वेसिकल्स बनाते हैं जिसका साइज 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अब जो हमारा जो डीएनए है दैट इज लोडेड इनसाइड दिस यूनिलैमुलर और मल्टीलैमुलर वेसिकल, और इस तो फिर आपका बन जाता है क्या, डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स। और जब आप इस डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स को होस्ट सेल के पास लेके जाओगे, उसकी विसिनिटी में ले जाओगे, तो एंडोसाइटेसिस होगी और ये जो डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज हो जाएगा और सारा का सारा जो वेसिकल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो लाइपो इन्फेक्शन इज अ वेरी इफेक्टिव chemical method for transferring the DNA. Here you can see that this is suppose your gene of interest, this is your expression vector का DNA है, आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल दिया और उस वेक्टर को आपने ये उसी वेक्टर का डीएनए है। अब आपने क्या किया, कैटायनिक लाइपोसोम लिया, कैटायनिक लाइपोसोम मतलब, और ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये आपका डीएनए है, ये आपके वेसिकल है, सो लाइपोसोम डीएनए कॉम्प्लेक्स बना और ये आपका क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के साथ। फिर एंडोसोम बनेगा, एंडोसाइटोसिस होगी, एंडोसोम बनेगा और फिर ये यहाँ पे कंटेंट रिलीज होगा एंड इट विल गो टू द nucleus of the host cell. So this is one of the very efficient method, chemically efficient method for transfer of gene. इसके advantage, the very first one is very economic, efficient delivery है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड से जो डिग्रेडेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएनए है वो सेल साइटोसॉल में ओपन नहीं हो रहा है, वो एक वेसिकल के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो जो न्यूक्लिक एसिड का जो डिग्रेडेशन होता है एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज के लिए, वो जो है वो इसमें नहीं होता है। डिसएडवांटेज में क्या है कि आप सारी सेल्स के लिए ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेल लाइंस में आप ट्रांसफेक्शन के लिए लाइपोसोम का यूज कर सकते हैं, आप सब में इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अबाउट द केमिकल मेथड्स एंड biological methods. In next class we will talk about the physical methods of gene transfer. Basically we will talk about microinjection, electroporation, sonoporation and gene gun or particle bombardment method that we will take in the next class. Okay, so this was about today's class. Agar if there is any question, please